اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں کو اور تمام امت مسلمہ میں جتنے بھی میرے عزیز و اقارب محبہ ہیں ان کو میں بڑے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ خلق کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو میری ماں بہنوں اور بزرگوں اور بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ رکھے اور ہر جملہ پریشانی سے محفوظ رکھے اور نجات عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج 12 ربیع اول ہے اور 13ویں کی رات جو ہے وہ الحمدللہ قریب الوقت ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا کیا، اور دوسرے ہم اور زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلک اہل سنت والوں کو ہر خوشی عطا فرمائی، جس طرح کہ اگر ولادت کا موقع آ جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا تو ہم لوگ وہ مناتے ہیں، اگر ولادت کا موقع آ جاتا ہے کہ حیدر کرار کا، شیر خدا کا، تو ہم وہ بھی مناتے ہیں، اور اگر آ جائے عثمان غنی کا، سیدنا عثمان غنی کا، تو ہم وہ بھی مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اگر ان کی آمد و رفت کا ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں علم ہو جائے، تو ہم مسلک اہل سنت والے وہ بھی ان کا میلاد مناتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، جس طرح کہ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ولادت کا دن تھا اور ہے، جس میں ہم نے بڑے جوم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اظہار کے ساتھ، بڑی خلق کے ساتھ ہم نے میلاد منایا۔ اور عزیزان محترم، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی توفیق دی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام کا ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اور عرس مبارک بھی ان کا مناتے ہیں۔ ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کو ہمیں بہت سی سہولتیں بھی ملی، جس طرح کہ الحمدللہ میں نے کل بروز 13 ربیع اول کو بعد نماز عشاء ہمارے وارڈ رٹن کے اندر جانی پہچانی شخصیات، دلوں کی روح، محبت کی جان، عشق مشکور اور
اگر علم کی طرف دیکھیں تو ان کا علم جامعہ، اگر ان کے زینت کی طرف دیکھیں تو ان کی زینت جامعہ، اگر ان کے اخلاق کی طرف اخلاق دیکھیں تو ان کا اخلاق جو ہے وہ جامعہ، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھیں تو ان کا چلنا پھرنا محبت بڑا جامعہ اور ہمارے لیے سبق۔ وہ میری مراد کون ہے؟ حضرت علامہ مولانا نور محمد قادری رضوی، جو کہ اس واربرٹن کی دھرتی کے اندر ان کا مزاج ہے، اور جس طرح کہ میری مراد جو ہے وہ بابا بشیر قادری چشتی صابری رحم اللہ، جن کا مزار الحمدللہ ننکانہ سامنے نزد پھاٹک قبرستان کے اندر موجود ہے، اور جس طرح کہ میری مراد اور میری عقیدت کی مراد حضرت علامہ مولانا استاذ علماء ابو مقبول خیر محمد رضوی، ان کا بھی اس واربرٹن کے اندر مزار موجود ہے، قبر مبارک موجود ہے، اور الحمدللہ ان بزرگوں کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ٹائم گزارا، اتنا ٹائم گزارا کہ میں رات کو بھی ان کے قریب ہوتا تھا، دن کو بھی ہوتا تھا، چند لمحات وہ اپنی فیملی میں جا کر گزارتے تھے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ مولانا خیر محمد رضوی سرکار کو اگر کوئی کال آ جاتی تھی تو میں نے ان کا یہ دیکھا طریقہ کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ مجھے کیا دیں گے، چلے جاتے تھے اور جا کر اپنا بیان اور جامعہ علم جو ہے وہ ان سے مستفید لوگوں کو کرتے تھے، اور اپنی محبت سے مستفید کرتے تھے، اپنے اخلاق سے مستفید کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اور اتنا علم میں نے جامعہ جو اپنے استاد محترم مولانا خیر محمد رضوی میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ ہر وقت ہر پل ہر ٹائم خدا کی قسم کتاب پکڑ کر جامعہ علم حاصل کرتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، اتنا نالج، بلکہ میں نے ایک ٹائم آیا تو میں نے اپنے استادوں سے بات کی تو میں نے کہا استاد محترم آپ محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے دوست بھی آئے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ اور ان کی سیرت مصطفیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب پکڑ کر، تو مسکرا کر کہنے لگے کہ جمال دین، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا کوئی اور عمل اچھا ہوگا، مگر مجھے اس بات میں گمان ہے کہ میں ہر وقت اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ڈنکا بجاتا رہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں دلیل بھی دیتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں، تو بروز قیامت میرا جو ہے وہ بروز قیامت میری بخشش کا نظریہ ضرور بنے گا، واللہ کہ یہ میرے استادوں نے یہ الفاظ۔ اور عزیزہ نے محترم اگر دیکھ لے کہ اگر نماز پڑھ لے تو اگر نماز کے اندر محبت نہیں ہے تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے، اگر آپ قرآن پڑھ لیں قرآن کے اندر آپ کی محبت اور لگن نہیں ہے تو وہ آپ کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ قبولیت نہیں ہے، اگر آپ کوئی بھی میلاد بنا لے اور آپ کا دل اور آپ کا من آپ کا قلب آپ کا روح جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے معطر نہیں ہے تو آپ کا میلاد منایا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور عزیزان محترم اگر ہم کوئی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام منا دے تو اگر اس میں کوئی محبت نہیں ہے لگن نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ان کے ملائکہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم لیکن میں نے اپنے استاد محترم اس ہستی کو میں نے قریب بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا، اور اس وقت میرے اسٹوڈنٹ دور تھا، میں ان سے پڑھتا تھا، مگر انہوں کا مطالعہ اور ان کی تعلیم، ان کی محبت، ان کا عشق جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنا جامعہ علم میں نے کسی ائمہ کرام میں آج تک نہیں دیکھا۔ اور دوسرا جلوہ میں نے دیکھا ہے جو اس واربرٹن کے اندر نگینہ مسجد میں خطیب ہیں اور امیر سنی علماء اکرام کے کونسلر بھی ہیں، وہ میری مراد حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد رضوی صاحب
जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, जो अकीदत के साथ मैं उनको अपने उस्ताद भी मानता हूँ, अपना रूहानी बाप भी मानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लुत्फ मिला तो यकीन मानो कि मुझे लुत्फ अंदाज वो मिला अल्लामा शफाअत रिजवी साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम से। जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इतना इल्म, इतना जामिया इल्म था हजरत अल्लामा मौलाना खैर मोहम्मद रिजवी साहब। और चौथी शख्सियत जिनको बच्चा बच्चा भी जानता है, जिनको हर कोई जानता होगा, इंडिया शरीफ में उनका यानी के मज़ार शरीफ है, और हजूर ख्वाजा ख्वाजगान मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलिया जो उनका कल उर्स मुबारक है, और मरकजी निगाह भी ये इनके उर्स का नियत के साथ हमने जो ये एहतमाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप दोस्तों से इल्तिजा है कि जो जो मेरा वीडियो बंदा देख रहा है, आप जरूर शिरकत करें इस उर्स मुबारक में। इन 4 बुजुर्गों के जो यानी के उर्स मुबारक है, और इनमें से जो एक बुजुर्ग है बाबा बशीर सरकार रहमुल्लाह, इनके साहबजादे भी आएंगे, और इंशाअल्लाह दूसरी जानिब शानी शख्सियत जो है हजरत अल्लामा मौलाना खैर मोहम्मद रिजवी साहब, इंशाअल्लाह मेरा पूरा यकीन है कि वो अपने वालिद के उसमें वो भी लाजमी आएंगे। उनका नाम है साहबजादा जुबैर रिजवी हाशमी साहब और आसिफ हाशमी रिजवी साहब, या अल्लामा आशिक रिजवी साहब, या उनका साहबजादा काशिफ रिजवी साहब। वो इन चारों भाइयों से लाजमी इंशाअल्लाह कोई एक जरूर हम इस महफिल समा में हाजिर होंगे। इसी बहाने आपको इन बुजुर्गों की हस्तियों के साहबजादों की ज़ियारत से आप मुस्तफीज भी हो जाएंगे, ठीक है। और वो मैंने सुना है ना कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। अजीजान मोहतरम, हो सकता है कि कल की घड़ी जो है वो अल्लाह वालों की महफिल में हमें अल्लाह मिल जाए और हमारी बात बन जाए। तो आप जरूर शिरकत कीजिए, जरूर शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मजा भी आएगा, लुत्फ भी आएगा, और आपको उससे फैजान भी हासिल होगा, फैजान से मुस्तफीद भी होंगे, इल्म से भी आप मुस्तफीद होंगे। हम साहब इंशाअल्लाह कोशिश फरमाएं कि आप लाजमी कल शिरकत फरमाएं। मेरा मौज़ू शुक्र जो है वो आज का सीरत मुस्तफ़ा का ही है, मगर याद रखना कि अगर हम एक सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो फिर दूसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखते हैं, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, फिर छठी पे। यानी कि अगर हमने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत तक पहुंचना है तो पहले अल्लाह वालों की महफिल में बैठे तो अल्लाह वाले आपको रसूल तक उनकी मोहब्बत में पहुंचा देंगे, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तक पहुंचा देंगे, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचा देंगे, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बैठना, उठना, चलना, फिरना और इबादत करना सिखा देंगे, और आपका हुस्न इखलाक और हुस्न ज़ान भी ये जो है वो हमें बता देंगे। उस महफिल में अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता, तो अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर सबक हासिल करना है, इश्क हासिल करना है, मोहब्बत हासिल करनी है, इखलाक हासिल करना है, अगर तरबियत अच्छी हासिल करनी है तो अल्लाह वाली महफिलों में आया करो। तो अल्लाह वाले जो है वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत मुतहरा तक पहुंचा देंगे और आपको जो आईना करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने किताबों में पढ़ा है, हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखेगा, जो बंदा मेरी अहले बैत के साथ, मेरे नवासों के साथ, मेरे खानदान के साथ कोई बुग़्ज़ रखेगा तो उनका मिलाद मनाना भी नहीं माना जाएगा, और उनका जिक्र करना भी नहीं माना जाएगा, और उनकी इबादत की जाने की भी जो की जाएगी वो भी नहीं मानी जाएगी। अल्लाह अकबर। भी आ गई अब सीढ़ी का साथ दे रहा हूं कि फिर पाक हजरत इमाम हसन हुसैन तक हमें ये पहुंचाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। तो मेरी फिर भी आपके अगर आगे इल्तिजा है, मदनी इल्तिजा है कि आप कल जरूर इस महफिल समा में हाजिर हो और शिरकत करें। वो कहते हैं ना
کہ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो ही लोग जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वो ही लोग जिनको सरकार बुलाते हैं। अजीजान मोहतरम, कल वो ही हाजिर होगा इन चार बुजुर्ग हस्तियों के फिजान से मुस्तफीज होने के लिए, इनकी तालीमात से मुस्तफीज होने के लिए और इनके फैज़ फ्यूज और बरकत से मुस्तफीज होने के लिए वो ही आएंगे जिनको सरकार बुलाएंगे। महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही लोग जिनको सरकार बुलाते हैं। अजीजान मोहतरम, मेरी फिर भी इल्तिजा जरूर कल शिरकत करना। इस मंडी वारब्रटन के अंदर एक कोट मोहम्मदीन टिब्बा है, कब्रस्तान है, वो इबादी का नाम है। उस इबादी के अंदर जामिया मस्जिद किबला, क्या नाम, गुलजार मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में मैं कम पे 4 साल खतीब व इमाम रह चुका हूँ, और उस मस्जिद में अब मैंने वो वहाँ उस मुबारक का जो है वो मतलब के प्रोग्राम रखा है, जिसमें बहुत बड़ी कावश जो चौधरी खावर साहब है कैमरामैन, ये उनकी भी ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी और है, और जिसमें मेरी मुराद मौलाना मुजस्सम अली अतारी साहब, और जिसमें मेरी मुराद जो है वो और भी अकारब है जिन्होंने ये कावश की कि ये उर्स मुबारक होना चाहिए, और जिसका नाम ये मियाँ आबद हुसैन है, और भी जो अकायदीन है उन्होंने भी ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और जिसमें मतन मेरे दिल में भी काफी दिनों में, काफी महीनों में, सालों में ये अरमान था ये उर्स हम बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बशर्ते जिंदगी रही तो कल मैं भी इंशाल्लाह उस महफिल में जरूर हाजिर होऊंगा, तो आप भी उस महफिल में आए। अब बात हो रही थी तालीम की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर 1,24,000 अंबिया कराम आए तो ये चैलेंज और डंके की चोट पे कहता हूँ कि रब करीम ने ना तो हिसान जतलाया तो ना एक नमूना बताया, और जिसकी भी उम्मत, जितनी भी उम्मतें गुजरी है वो नमूना नहीं मानी गई। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारी आई तो रब्बे खालिके कायनात ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कि ए हबीब मैंने आपको कौसर बनाकर भेजा है, ए हबीब मैंने सिरत का कौसर बनाकर भेजा है, ए हबीब मैंने सूरत का आपको कौसर बनाकर भेजा है, ए हबीब मैंने मोहब्बत का आपको कौसर बनाकर भेजा है, ए प्यारे हबीब मैंने आपको इखलाक और तरबियत का, हुस्न ज़न का कौसर बनाकर भेजा है, ए मेरे प्यारे हबीब मैंने आपको सब्र का कौसर बनाकर भेजा है, ए मेरे प्यारे हबीब मैंने जन्नत का आपको कौसर बनाकर भेजा है, ए मेरे प्यारे हबीब मैंने अर्श और फलक का आपको मैंने कौसर बनाकर भेजा है, ए मेरे प्यारे हबीब मैंने तमाम अंबिया इकराम जो गुजर गए वो एक साइड पे, मगर मैंने तमाम उम्मतों के ऊपर भी आपको कौसर बनाकर भेजा है। इसलिए प्यारे हबीब तुम की तरफ जो देखेगा वो आपकी मोहब्बत में मानूस होगा। जब आपकी मोहब्बत में मानूस होगा तो मैं अल्लाह उनकी तरफ रग़बत करूंगा। तो मेरे अजीज़ान मोहतरम, कुर्बान जाओ उस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे थे, सफर कर रहे थे, क्या बात है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा मेरा सारा खानदान आपके ऊपर कुर्बान हो, हमें भूख लगी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठहर जाओ और अपना सामान कंधों से उठाकर यहाँ रख दो और खैमे लगाना शुरू कर दो। जब खैमे लग गए तो अजीज़ान मोहतरम, जब खैमे लग गए तो अब मैं वो बात बताऊंगा कि मैंने वो आजिज़ाना तरीका आज तक शायद किसी में ना देखा हो, वो तरीका मैंने आज तक किसी आमा इकराम के अंदर ना देखा हो, शायद वो इखलाक और मोहब्बत और वो आजिज़ाना किसी हाकिम के अंदर ना देखा हो, जो मेरे हबीब तुबरिया के अंदर वो जो इखलाक है, उन जैसा इखलाक किसी का नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब खैमों का हुक्म फरमाया तो खैमे लग गए। तो जब खैमे लगाए गए ना तो एक सहाबी कहने लगा कि जो जानवर ज़िबा करूंगा वो मैं करूंगा। एक सहाबी कहने लग गया कि लकड़ी, जो एक सहाबी कहने लगा कि जो है ना वो
जो आटा है वो उसको गूंदूंगा तो मैं गूंदूंगा। दूसरा तीसरा कहने लगा कि मैं फलां काम करूंगा। चौथा कहने लगा कि मैं पानी लाऊंगा। पांचवा कहने लगा मैं फलां इंतजाम करूंगा। जब सब ने ये बात कह दी तो मेरे आका ने जब नोट किया तो मेरे आका जो है उनकी सहाबा किराम की आंखों के आगे से उजल हो गए अचानक। तो देख कर कहने लगे माही किधर गया है तू? तो देखा है परेशान हो गए। तो थोड़ी देर तक देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के कंधों में लकड़ियां तो आ रहे हैं। तो सहाबा उठे और अदब के तकाजे में उठकर और भागे और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये क्या किया? तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि ज़िबा मैं करूंगा, कोई कह रहा था कि मैं गोश्त बनाऊंगा, कोई कह रहा था कि मैं फलां काम करूंगा, पर लकड़ियों का किसी ने नहीं कहा। तो आए ये उनकी तालीमात है, ये उनका तरीका है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब अपने कंधों में लकड़ियां उठाई और जवाब दिया, कहा कि किसी ने ये लकड़ियों की जिम्मेदारी उठाई तो ना, मैंने देखा कि लकड़ियों की जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा, तो मुझे क्या हुआ कि मैं आपके लिए लकड़ी ले आया। अल्लाह अकबर। ये आजिज़ाना तरीका, ये आजिज़ाना तरीका। उनके तालीमात पे जाए तो 20 साल की उम्र थी और मैंने किताबों में पढ़ा है कि नबूवत तो 40 साल में हुई थी, मगर बाद आइमा इकराम अकीदत में, मोहब्बत में, इश्क में आकर के थे। जब मेरा आका पैदा हुआ नबूवत तो उस वक्त ही मिल गई थी मेरे आका को, और ये मेरा भी अकीदा है। अजीज़ान मोहतरम, जब 20 साल की बरस का उम्र का वक्त हो तो मक्का में बड़ी जाहलियत थी। मक्का में आपने वो घे मक्का मुकरमा में देखा तो उधर कोई कानून नहीं था। देखा कि उधर कोई कानून नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई सलीका नहीं था। वहां के लोगों को इकट्ठा किया, एक टीले के ऊपर जमा किया, जमा करके कहा कि क्यों ना हो कि हम यहाँ एक कम्युनिटी बनाए, एक यूनियन बनाए, एक जो है वो वेलफेयर बनाए, जिसमें मक्का मुकरमा में जो लोगों को इंसाफ मिल सके और लोगों का जो तरीका है वो ठीक हो सके, जो लोग हैं वो अच्छी तरबियत हासिल कर सके। तो लोगों ने उस वक्त चंद लोगों ने कहा लब्बाइक। तो जब एक आदमी पास से गुजरा, हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ। अब नुक्ता नोट करना है, नुक्ता नोट करना जो बताने लगा हूं, जो बताने वाला हूं। अब ये नुक्ता नोट करना मोहब्बत में, इश्क में। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ये यूनियन बनाने के लिए तरबियत दे रहे हैं तो एक आदमी जो है रोता आ रहा है, रोता आ रहा है। तो यकीन मानो कि मैंने किताबों में पढ़ा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास वो बाद में आया था, मेरे आका उनके पास पहले चल गए और कहा कि अल्लाह के बंदे तुम क्यों रो रहे हो? कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके पूछने से और आपके कहने में क्या होगा? अल्लाह अकबर। उनको ये इल्म नहीं था, ये तो वो महबूब है जिनको नबूवत मिलने वाली है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम बताओ हुआ क्या है मसला? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे पास एक ऊँटनी थी, तो वो ऊँटनी भी बच्चे का नजूल करीबुल वक्त था। तो मेरे घर बेटी हुई तो वो मैंने नियत की कि वो ऊँटनी जो है जब वो मेरी बेटी की शादी का वक्त आएगा तो मैं वो ऊँटनी सेल करके मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। मगर हुआ क्या या रसूल, मैंने एक जो है वो यहाँ का बादशाह है, मैंने उनको ये ऊँटनी उसने मुझसे मांगी तो मैंने ऊँटनी उनको सेल कर दी। अब वो पैसे नहीं दे रहा, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो पैसे नहीं दे रहा, मैंने बहुत सी शफारतें करा ली। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम नुक्ता नंबर 1 के जब वो आदमी दूर से रोता आ रहा तो मेरे आका खुद चलकर उनके पास चल गए। दूसरा नुक्ता, मेरे आका ने फरमाया चल जिस शख्स को तूने ऊँटनी से की मैं जाता हूं। तो आज क्या होता है, हाकिम क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं। आज क्या होता है कि वो फॉरवर्ड कर देते हैं। आज क्या होता है कि आज
जो MP MLA लगा लो, कोई हाकिम लगा लो, वो क्या करते हैं कि अपनी चेयर से हिलना तो मुनासिब नहीं समझते, सिर्फ कॉल करके कहते हैं कि ये आदमी आ रहा है। अरे भाई दीन तो ये नहीं है, मेरा दीन तो सिखाता है कि तुम चल कर जाओ और झुको, मेरे आका झुके हैं और आपको क्या है। अजीजान मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये 12 रबी अव्वल है, जिनका हम 12 रबी अव्वल मनाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस नुक्ते पे बाद में आऊंगा। बताना ये चाहता हूँ कि अपने दिल को पहले सिरते मुस्तफा बनाओ, अपनी आंखों को पहले सिरते मुस्तफा बनाओ, अपनी चाहत को पहले सिरते मुस्तफा बनाओ, अपने दिमागों को पहले सिरते मुस्तफा बनाओ और अपनी आराशों को भी सिरते मुस्तफा और इश्क़े मुस्तफा से मालो माल करो, फिर मिलाद मनाओ, मिलाद वाला खुद आ जाएगा, आपको ज़ियारत करवा जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, अच्छी बात है, झंडियां लगाते अच्छी बात है, अगर आप हम बल्बे लगाते हैं अच्छी बात है, अगर हम फूल लगाते हैं ये भी अच्छी बात है, कपड़े पहनते हैं ये भी अच्छी बात है, अगर हम खुशबू लगाते हैं ये भी अच्छी बात है, और अगर हम मिलाद मनाते हैं ये भी अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जो जैसे मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका के मुताबिक जिंदगी बसर की, हमें वो तरीका रखना चाहिए, फिर जाकर सिरत मुस्तफा बनाई जाती है, फिर जार हकीकत मुस्तफा बनाई जाती है। अल्लाह अकबर। मैं आपके कर्ज करूं कि जिनको खालक बनाए कौसर, जिनको खालक बनाए कौसर, तो वो ऐसे तो नहीं बना देता, वो तो आलिमुल गैब है। इतने अंबिया कराम आए, उनको कौसर तो ना बनाया, यासीन वल कुरानिल हकीम हिकमत वाला तो नहीं बनाया। अजीजा ने मोहतरम, कुल हुवल्लाहु अहद ने, उसी हद ने, उसी रब ने, उसे करीम ने अपने महबूब को कौसर बनाकर भेजा, तो फिर उसका तरीका देखें कि वो आदमी के पास खुद किया। दूसरा तरीका ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कि परेशान ना हो, मैं जाता हूँ। अर्ज की या रसूल, तुम्हारे आपके जाने पे क्या बनेगा, मैंने तो इतनी प्रोचे करा दी हैं, मैंने इतना तल्लक इस्तेमाल किया है, मगर वो उठनी के जो पैसे देने पे नहीं आ रहा। तो कहा कि लेकर तो चलो, अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा लेकर गया, लोगों से पूछा कि वो बादशाह जिसने ये जो ऊँटनी खरीदी, इस बंदे की वो कौन है? तो गालिबन मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो अबू जाल था, वो जो बादशाह था ना, वो जिसका जिक्र करता, अबू जाल ने वो ऊँटनी खरीदी। मैंने किताबों में पढ़ा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ये वाकया मैंने काफी दिन पहले पढ़ा, तो अल्लाह ये हकीकत में बदल दे जो मैं अल्फाज अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है कि उसका नाम अबू जाल था। तो अबू जाल से वो ऊँटनी वापस लेकर दी। अब मनाजर जो है वो इनको बड़ा तवील लंबा कर देते हैं। अर्ज ये है कि वो ऊँटनी वापस मिल गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीका भी मैंने बता दिया और झुककर चलने वाला भी तरीका बता दिया। वो नबी जिनको चांद का भी कौसर बनाकर भेजा, वो महबूब जिनको सितारों का भी कौसर बनाकर भेजा, वो महबूब जिनको अंबिया इकराम के ऊपर भी कौसर बनाकर भेजा, वो मेरा लजपाल नबी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात जमीन से लेकर अर्श के अर्श तक और अर्श से लेकर फलक तक कौसर ही कौसर बनाकर भेजा। अगर बात समझ नहीं आई तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आज का कोई ऑनर हमें इज्जत दे जाए तो लोग इज्जत करने लग जाते हैं, कानूनदान उनसे डरने लग जाते हैं। आज कोई लॉयर एक बस्ती में रहता हो तो उधर कानून वाले भी जगते हैं जाते वक्त, नहीं नहीं इधर लॉयर रहता है, इधर वकील रहता है, कोई ऐसा मामला हो गया तो फाल्ट बन जाएगा। तो अजीजा ने मोहतरम, उनको वकील बनाया मेरे रब ने, महबूबियत नबूवती मेरे रब ने, कौसर अता फरमाई मेरे रब ने। मगर रब वो ताकत है, वो ताकत है, वो ताकत है, वो ताकत है, तो उन जैसी ताकत नहीं है। तो अजीजा ने मोहतरम, मेरे महबूब को रब ने कौसर बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। आप बात करते हो कि मिलाद कहाँ लिखा है, मेरा खुला चैलेंज है। अरे भाई मिलाद पे इतराज करता है तो नमाज पढ़ना ही छोड़ दे, क्योंकि नमाज हम जब पढ़ते हैं ये भी मिलाद है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो ये भी मिलाद है। और अब बात ये करते हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन की वफात है, वो भी दलील तो रब ने कुरान में पैदाइश की दे दी,
تو अगर कोई आप लोगों के पास मैंने तो पढ़ा है ना, तो सैयदा सिद्दीक़ अकबर से ये साबित ना, या सैयद उस्मान गनी से साबित ना, हैदर करा से ये साबित है, किसी सहाबा से ये साबित नहीं है कि जिन्होंने ये कहा हो कि ये वफा का दिन है तो यहाँ मिलाद ना मनाओ, खुशी ना मनाओ, बल्कि कुरान से लेकर नमाज तक ये साबित है तो खुशियां मनाओ। आओ मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नज़ूल हुआ तो रब्बे खालिक़े कायनात ने उस मदीने की गलियों में मलाइका का नज़ूल कर दिया, और जब मलाइका का नज़ूल किया ना तो मलाइका ने अर्ज की, या अल्लाह अब क्या करे, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब के ऊपर दुरूदो सलाम पढ़ो और उसका जिक्र करो। अरे भाई तू तराज करता है या रसूलुल्लाह, और तू तराज करता है मिलाद का, तू तराज करता है जंडियां लगाने का, और तू तराज करता है और ये जो हम जो कुमकुमे लगाते हैं, जो तू तराज करता है हम खुशियां मनाते हैं। अरे भाई तेरे घर बच्चा पैदा हो जाए तो तू जो मिठाइयां बांटता है, मेरे घर बेटा एक ही पैदा हुआ तो रब ने मिलाद महबूब का मना दिया, तेन पेड़ पे ली। अगर रब ने खालिक़े कायनात ने मिलाद नहीं मनाया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप साबित करो कि मिलाद मनाना शिरक है और बिदअत है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दूंगा और आपके कायद पे आ जाऊंगा। अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो बताना ये चाहता हूँ वो भी मिलाद, अगर कुरान पढ़ते हो वो भी मिलाद, आप चलते हो वो भी मिलाद, आप उठते हो तो वो भी मिलाद, अगर आप जिक्र रब का करते हो वो भी मिलाद, क्योंकि रब ने फरमाया जिस जगह पर हबीब मेरा जिक्र होगा तेरा जिक्र अगर नहीं होगा तो वो जिक्र को मैं जिक्र नहीं मानूंगा। ये कुरान से साबित बात। हम आ जाते हैं वसवसाओं में। अजीजा ने मोहतरम, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने अर्ज किया कि हम बड़े लोग खुश नसीब हैं मसलक अहले सुन्नत वाले कि हम सभी लोग जो है वो हर त्योहारात मनाते हैं मगर कुरान पढ़कर, नमाजें पढ़कर और जिक्र मुस्तफा से मनाते हैं। तो क़यामत वाले दिन भी हम झूमर डाल जो ना झूमर के साथ मशर वाले दिन मोहब्बत के साथ झूमते झूमते जन्नत में हमें रब ने ले जाना है। किसी ने कह देना ये हमारा अकायद है, किसी ने कहना ये मेरे साथ या अल्लाह मोहब्बत करने वाला था, हुसैन ने कहना ये मेरे साथ मोहब्बत करने वाला था, इसने मेरा मिलाद मनाया। सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने रोज़े क़यामत कहना या अल्लाह नहीं इसने मेरा भी जिक्र किया, इसने मेरा भी मिलाद मनाया। और सैयदा उस्मान गनी ने कहना इसने मेरा भी जिक्र किया। अल्लाह वालों, अगर हम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे तो वो भी अपने यारों की बात मानेगा और किसी और की बात नहीं मानेगा। आज किसी का दोस्त हो, चलाओ मैं आपको एक बात बताता हूँ नुक्ता नजर। आप कहते हो कि मज़ारों में क्या लेने चाहते हो, कुरान से दलील मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जरूर दूंगा, अगर मेरा कैमरामैन मुझे याद करा दे, कुरान से दूंगा कि ये कहां से साबित है कि मज़ार पे जाना, ये कुरान से दूंगा। बात दुनियावी में आपको दलील देता हूँ कि भाई आज किसी के ऑनर के साथ, किसी डीपीओ के साथ, डीआईजी के साथ, आईजी के साथ, किसी एमपीएमए के साथ तल्लुक हो तो बड़ा फख्र वो नाज करता है कि मेरी बात मानी जाती है। तो अगर किसी का तल्लुक हो मेरे गौसे आदम के साथ तो उसको नाज होगा ना कि रब अपने यारों की बात मानता है, अल्लाह ताला अपने यारों के साथ प्यार करता है। तो जब रोजे क़यामत का दिन होगा तो जो उनके वली कामल होंगे वो भी उनको अजीज होंगे, क्योंकि वो दोस्त हैं अल्लाह के। अल्लाह कहता है कि वो मेरे दोस्त है, और भाई जब रब कहता है वो मेरे दोस्त है, जब वो रब कहता है वो लाखौफ है, उनको कोई खौफ नहीं जो मेरा बंदा है, जो रब कहता है, जब रब करीम जो है इस बात की दलील दे रहा है तो फिर तुम क्यों, हम लोगों को क्या होता है भाई कि मज़ार में क्या लेना चाहते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी कुरान से साबित करूंगा कि कौन नबी चलकर गया था तो किसने भेजा था। बाकी लोग आप इस बात से समझ जाएंगे। ये नहीं है कि मेरे पास दलील नहीं, दलील है, मगर ये साबित है कि अल्लाह ने कहा फलां चीज के पास चले जा। क्योंकि अभी तो मैं इस वीडियो से कमेंट्स देखूंगा ना तो लोग क्या करते हैं, क्या दलील मांगते हैं, तो मैं दलील दूंगा। ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उसे
استاد کا शागिर्द हूं तो जो इसी मंडी वारबटन के अंदर डंके की चोट के साथ हवाले भी देते थे और सीरत मुस्तफा भी बयान करते थे। ऐसी बात नहीं है कि अगर मौलवी जमाल उनका शागिर्द मैदान में आ जाए तो मैं सीरत मुस्तफा बयान करने से कासर रहूंगा, नहीं। औलिया इकराम की सीरत बयान करने से कासर रहूंगा, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो सीखा है उनकी सोहबत से। तो अजीजान मोहतरम, बहस तकरार हम उन मौकात में नहीं करते जिस जगह पे हमारे फंक्शन हो, तो जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का वलादत का दिन आ जाए तो वहां हम नुक्ते निकालने शुरू कर देते हैं। मगर सुन्नी लोग क्या है वो बताना चाहते, सुन्नी है मानी। जब दिन आ जाए तो वो तैयारी करने लग जाते हैं। कोई त्योहारात ऐसा किसी साहबी का आ जाए तो हम तैयारी करने लग जाते हैं। हम ये नहीं है कि हम नुक्तों में चल जाते हैं, चीनागिनियों में चल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम अल्लाह वालों के जो है दोस्त हैं उनके गुलाम बन जाएं, तो अपने अंदर सादगी और आजिज़ी खुदा की कसम पैदा कर लो, खुदा की कसम पैदा कर लो। उस गायगात की कब्र में किसी की सिफारिश दुनियावी नहीं मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मानी जाएगी और उनके यारों की मानी जाएगी। आज मैं ये देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे कि छोटे से टुकड़े की वजह से बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, कत्ल गुबार हो जाती है। वो कहां जाता है यार इंसान? जब हम मारते हैं, चले एक नुक्ते पे आ गए, जब हम मारते हैं यार आपने हमने ये तो देखा ना, तो कोई फौत हुआ तो साथ कुछ भी नहीं लेकर गया, कुछ भी नहीं लेकर गया, तो फिर इस दुनिया में रहकर हम आकर क्यों चलते हैं यार? हम इस दुनिया में रहकर हम नुक्ताबाजियों में क्यों जाते हैं यार? हम इस दुनिया में रहकर हम क्यों अपना वक्त जो बर्बाद करते हैं फजूल बातों में? हम मान ही जाए तो वो ये बेहतर नहीं है कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा करने से ही इबादत बनती है। और इखलाक मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरह करें, सबर मेरे आका की तरह करें, और पैगाम जिस तरह मेरे आका ने दिया इस तरह दे। आजकल क्या होता है, मादरत के साथ मेरे भाई आइमा इकराम जो है ये ना सोचें कि मैं उन लोगों को टिका है। कुछ लोग ऐसे जो अल्लाह के दरवेश कलंदर लोग हैं, जैसा कि मैंने कलंदर शख्स देखा कि अल्लामा शफाक रिजवी साहब को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये हकीकत कह रहा हूँ जो ज़ाहिरी तौर पे देखा वही बता रहा हूँ। वो कलंदर है और दरवेश आदमी है। और दूसरा हमारे इसी मंडी वारबटन के अंदर माशाल्लाह जो अगर कलंदर देखना है तो मौलाना नसर इकबाल अतारी साहब को देखना। वो भी ऐसे कलंदर है कि जो इनकी निगाह में चले जाए उनके साथ मोहब्बत का तकाजा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि दूसरों को खुद ही पता चल जाता है। ऐसा इखलाक का बर्ताव करते हैं माशाल्लाह। इतना प्यारा इखलाक, इतनी प्यारी मोहब्बत कि उनकी हर चीज का ख्याल रखते। यकीन मानो कि मैंने देखा कि अक्सर मैंने किस पिछली वीडियो में भी कहा कि अगर वो किसी के साथ नाराज होते हैं तो वो अपनी जातियात में नाराज नहीं होते। अगर वो होते हैं तो वो नाराज का इजहार उस वक्त करते हैं जब वो दावत इस्लामी का कोई काम ना करे या बाबा जान के मुताबिक जो है वो दर्श ना दे या सदाए मदीना ना लगाए या इज्तिमा में ना आए। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है। ये मेरे साथ वाकयात गुजर रहा है, गुजरा भी है। तो बाद में मैंने इश्क में जाकर देखा, नहीं भाई अगर वो मेरे साथ नाराज है तो वो अपनी बात पे मसलक ठीक है, क्योंकि वो अपनी जातियात पे नाराज नहीं है। वो तो नाराज इस वजह से है कि इज्तिमा में नहीं जाते। मरकज का काम हमें करना चाहिए क्योंकि वो भी अल्लाह वाले हैं ना। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह से मिला देते हैं। आज मर्दे कलंदर देखना है आजकल के दौर में तो मेरे पीरो मुर्शिद अतार को देख लें, उनका तरीका देख लें, उनका बैठना देख लें, उनका सोना देख लें, उनका आजाना तरीका देख लें। अल्लाह अकबर, आप खुद ही मान जाएंगे और मानते भी लोग होंगे। आज मैंने देखा है कोई भी मकतब फिक्र में हो किसी का तराज नहीं है मेरे मुर्शिद करीम के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नहीं है। और जो आज बयान कर रहा हूं तो ये तरीका उनकी रतबत में सिखाना। अगर मैं तारी ना होता तो आज मुझे बोलना कहां से आता। अगर मैं तारी ना होता
تو نہ ہی میں اپنے استادوں کے پاس علم سیکھنے جاتا مولانا خیر محمد رضوی سرکار کے پاس جو حق ہو چکے ہیں، جن کا مزار اس منڈی وار بٹن کے اندر ہے، تو نہ آج مجھے بولنا آتا۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی تو بسر کریں، ساتھ ساتھ محبت انس ایسی پنائیں، ایسی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر خوش ہو جائے اور ان کا رسول ہمارے اوپر خوش ہو جائے اور ان کا رب ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کا تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کا تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اگر آپ چراغا کروانا چاہتے ہیں آقا دو جہان کا، تو پھر من کو چراغا کرو، پھر تن کو چراغا کرو، پھر عشق کو چراغا کرو، پھر محبت کو چراغا کرو، پھر اپنی نگاہ کو چراغا کرو، پھر اپنی زبان کو چراغا کرو، محبت کے ساتھ چراغا کرو، تو پھر بھی چراغا تیرے گھر میں بھی ہو جائے گا یا رسول اللہ جو حاضر ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آئیں گے، آپ اللہ اکبر قربان جاؤ، وہ تو غلاموں کے ساتھ محبت کرتے ہیں یار۔ ان کی حیات زندگی میں جتنی بھی صرف پڑھ لیں گے تو وہ تکبر آپ کو ثابت نہیں ہوگا، یہ کھلا چیلنج ہے۔ غرور ثابت نہیں ہوگا، یہ کھلا چیلنج ہے، اور عاجزانہ طریقہ ثابت ہوگا۔ تو پھر یار عاجزانہ طریقہ اپنایا کرو، دنیا کی لالچ چھوڑ کر آخرت کی رضا مان لو، تو وہ آپ کی نماز بھی وہی عشق میں ہو جائے گی۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو میں نے قول پڑھا، پاک علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جب دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا تھا جب تک مجھے آقا دو جہان کی زیارت نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں کیا ہم کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں میں آپ کو ہر بیانات میں یہ لاسٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہم، یا ان کے طریقے کے مطابق ہم پوری زندگی کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہر ضلع میں ہمارے دعوت اسلامی اور آپ کی دعوت اسلامی، ہماری دعوت اسلامی اور آپ سب لوگوں کی دعوت اسلامی وہاں اجتماع مرکز میں ہوتا ہے، جیسا کہ منڈی وار بٹن کے اندر بعد نماز مغرب تا عشاء تک ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں الحمدللہ اس اجتماع میں بہت اچھی صلاحیت سکھائی جاتی ہے، بہت اچھا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ بتائی جاتی ہے، اور بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے گھر میں چلنا ہے پھرنا ہے، یہ ادب آداب سکھائے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی شرکت کیجئے، اپنے بچوں کو بھی شرکت کیجئے۔ جو اسلامی بہنیں ہیں ان کا غالباً مولانا مجسم صاحب اتوار کو اجتماع ہوتا ہے، وہ اجتماع میں شرکت جو اسلامی بہنیں ہیں اور کیا کریں، اور اس اپنے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دیوروں کو ترغیب دلائیں اور اجتماع میں بھیجیں۔ انشاءاللہ میرا یہ محبت کے ساتھ چیلنج ہے کہ 5ویں اجتماع جب وہ شرکت کریں گے تو وہ بدل کر پورے ہی آ جائیں گے۔ یہ تو میرے سب کو ذاتی طور پہ پیتا ہے، تو اس لیے آپ کے آگے عاجزانہ التجا ہے، اپنے اندر سے غرور ختم ہم کو کرنا چاہیے، ہمیں تکبر ختم کرنا چاہیے، پھر جا کر ہماری زندگی سیرت مصطفیٰ کے مطابق شاہد ہو جائے۔ نہیں تو عشق میں تو لمحات بہت سے ہوتے ہیں، جاگتے وہی ہیں جن کا کوئی ہو، پہرے دار وہی ہوتا ہے جن کا کوئی ہو، بولتا وہی ہے جن کو کوئی چیز نظر آتی ہو۔ اللہ اکبر، ہم پیارے آقا کی محبت کے پہرے دار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہم سب کو اللہ کا خوف رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ لاسٹ میں یہ عرض کروں گا
کہ اس چینل کو میرے کو جو ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، اس نیت کے ساتھ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ جو سن لے ان کی بھی بات مان جائے اور میرے بیان کرنے والے کی بھی بات مان جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔